Good morning, class. Today we are having our last class on chapter number 3. Dear students, we have already taken few classes on the same chapter, and I hope that all of you must got it properly. So today I will wind up this chapter and only 2 topics are left. So first of all, I just want to recapitulate the chapter which we had already completed. When we have started this book, at that time, I taught you that there were 3 main challenges in front of Indian government at the time of independence. The first challenge was the challenge of nation building. Under the challenge of nation building, you come to know that there were lots of princely states in India when it attained its independence. जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत सारे रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, और उस वक्त भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम अपने आप को एक प्रॉपर कंट्री की शेप में लाएं, अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करें. And at that time, this critical role was played by Sardar Patel. Sardar Patel have done a lot to combine so many princely states to India. धीरे धीरे बहुत सारी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई because they have signed the instrument of accession. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद भी बहुत सी रियासतें बच गई. स्पेशली उसमें हैदराबाद था, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, मणिपुर था. बट लेटर ऑन वन वे ऑफ अनदर these many states also became the part of Indian Union. But after the integration of these states, there was a big problem, and the problem was to redefine the boundaries of the states. So a Vishalandra movement was started, under which Potti Siram Ulu, who was a Ventram Gandhian, he was died after the 56 days fasting. Riots covered the state, so Indian government have decided to make a state reorganization commission. This state reorganization commission have worked well, and the boundaries of new India was made, and the whole country was divided into 14 states and 6 union territories. So the first challenge was overcome by the Indian government. The second challenge was the challenge of establishing democracy in the country, because भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश बनाने का जो उद्देश्य था, जो गोल था, जो मोटो था, it was decided during the freedom struggle. So it was not at all possible that India could go on another path. At the time of independence, it was decided that government will work for the welfare of the people. Government have proven itself right, and democracy was established in the country by giving right to vote to all the citizens, irrespective of their color, creed, caste, sex, place of birth. वोटिंग राइट जो था वो हर भारतीय को दिया गया. हाँ, वोटिंग की जो उम्र थी वो 21 साल रखी गई. इट वॉज रियली अ बिग गैम्बल कि एक ऐसे देश में जहाँ पर करोड़ों अनपढ़ मतदाता हों और वो देश के लिए अपनी सरकार का चुनाव करें. भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए. उसके बाद भारत हमेशा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहा. ऑल्दो उसमें बहुत सारी समस्याएं आई शुरू में भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराने में, लेकिन इंडिया वॉज एबल टू मेंटेन इट्स डेमोक्रेटिक सेटअप. इस डेमोक्रेटिक सेटअप के बाद अब जो तीसरा बड़ा चैलेंज था वो क्या था कि भारत में जो वेलबींग है वो सिर्फ अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ना रह जाए. डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ अपर सेक्शन के लिए ना रह जाए. डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए हो.
So that is why India have adopted the policy of planned development. अब जो planned development policy थी, basically there were only two ideas of development जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, the eastern model and the western model. In the eastern and western model, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो मेन पाथ थे डेवलपमेंट के, और जो पूरी दुनिया कर रही थी डेवलपमेंट का मतलब था टू बी वेस्टर्नाइज्ड. डेवलपमेंट वॉज बिकमिंग मोर मॉडर्न, एंड मॉडर्न मीन्स टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड, टू बी वेस्टर्नाइज्ड. It was believed that every country would go through the process of modernization. लेकिन on the eve of independence, India had before it two models जो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ. या तो हम कम्युनिज्म को अडॉप्ट करते या तो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते. लेकिन इंडिया ने जो मॉडल अपनाया वो एक अलग स्टाइल ऑफ मॉडल था, और वो था मिक्स्ड इकोनॉमिकल मॉडल. इस मिक्स्ड इकोनॉमिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया बाय फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान. जैसे कि मैं आपको पिछले क्लासेस में बता ही चुकी हूँ कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इट हैज़ इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, while the second 5 year plan have initiated industries. In the third 5 year plan also industry was given more priorities. लेकिन इसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, एक विवाद पैदा हो गया कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाना चाहिए था या इंडस्ट्री को. बिकॉज जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी इंडिया की, इट वॉज बैडली हर्ट. बहुत सारे लोग सोचते थे कि सेकेंड प्लान में अर्गेरियन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं किया गया, और चौधरी चरण सिंह एक्सेट्रा लोग जो थे दे वर अगेंस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. उनका एक ही समस्या थी, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ बिकमिंग रिच, लेकिन जो रिच हैं वो सिर्फ शहरों तक कन्फाइंड हो रहे हैं. सो अदर्स thought that without a drastic increase on industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty. So, इन दोनों प्लान्स पर चलते हुए भारत ने कई सारे 5 ईयर प्लान्स डेवलप किए, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत में हुई. इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो मेजर आउटकम्स निकले वो क्या थे, यहाँ से मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि what were the major outcomes. So dear students, of the 3 objectives that were identified in independent India discussed in first 3 chapters here, the third objective proved a most difficult to realize. लेकिन इन दोनों उद्देश्यों में जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल था. बिकॉज आप सब जानते हैं इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बट लैंड रिफॉर्म्स डिडंट टेक प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओइंग क्लासेस. जो सबसे बड़ी समस्या थी इंडिया की, लॉज वर बीन मेड, वो अच्छे से कानून बने, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर थी कंट्री की वो लैंड ओइंग सेक्शन के हाथ में थी, यानी ज़मींदारों के हाथ में थी. एंड मोस्टली जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे कंटिन्यूड टू बेनिफिट एंड थ्राइव वाइल द पॉवर्टी डिडंट रिड्यूस. द अर्ली इनिशिएटिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट वर at best realizing goals of economic development of the country and well-being of citizens. ये बात सच है कि प्लानिंग इसीलिए थी कि लोगों की वेलबींग हो. The inability to take a significant steps in this direction in a very first stage was to become a political problem. Those who were benefited from unequal development soon became politically powerful. भारत में डेवलपमेंट हो रही थी, बट इट वॉज अनइक्वल, इट वॉज नॉट इन द रीच ऑफ ऑल द पीपल. एंड धीरे धीरे जो डेवलप्ड होते जा रहे थे वो पॉलिटिकली एक्टिव भी होते जा रहे थे. सो इट वॉज द अनदर प्रॉब्लम, एंड दे मेड इट मोर डिफिकल्ट टू मूव दिस डेवलपमेंट डिज़ायर टू द डिज़ायर्ड डायरेक्शन.
डेवलपमेंट हो रही थी लेकिन नॉट इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट ऑल्दो जो डेवलपमेंट डिज़ायरेबल नहीं थी, बट it was able to keep the foundation of some assets. हाँ, बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन आज के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत कुछ उनकी नींव उस समय रख दी गई. An assessment of the outcomes in the early phase of planned development must begin by acknowledging the fact that in this period the foundations of India's future economic growth were laid down. कि कम से कम भारत की जो भविष्य की नींव जो थी वो रख दी गई. Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period. This included the mega dams like Bhakra Nangal, Hirakund for irrigation and the power generation. Some of the heavy industries in public sector, steel plants, oil refineries, manufacturing unit, they were started during this period. यानी हालांकि डेवलपमेंट अपने डिज़ायर्ड गोल तक नहीं जा रही थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें उस समय शुरू हुई और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने आने वाले समय की, आने वाले भारत की नींव रखी. They were started. Infrastructure for transport and communication improved substantially. Of late, some of these mega dam have came to for lots of criticism. हाँ, of course आने वाले समय में इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा. But much of their later economic growth, including that by the private sector, may not have been possible in the absence of these foundation. Of course डेवलपमेंट हुई, लेकिन इन जो फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स थे अगर ये नहीं किया गया होता तो प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप नहीं कर सकता था. तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट वाज नॉट इन द रीच ऑफ एवरी इंडियन, लेकिन जो नींव थी वो फ्यूचर डेवलपमेंट की यहाँ पर रख दी गई. I am beginning with another topic, and this another topic is the land reforms. Dear students, भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लैंड रिफॉर्म्स की, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स थे, जो कानून थे, जो लैंड थी बेसिकली, it was in the reach of the highest, richest section of the society. In the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at land reforms. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of ज़मींदारी. यानी इस दौरान ज़मींदारी सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म किया गया. This bold act not only released land from the clutches of the class that had a little interest in agriculture, it also reduced the capacity of landlords to dominate politics. यानी इससे दो फायदे हुए. एक तो ज़मीन उन हाथों से बाहर निकल आई जिनको खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड स्पेशली जो लैंड रिफॉर्म्स जो थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर डोमिनेटिंग द पॉलिटिक्स, वो भी कम हुआ. अटेम्प्ट्स एट द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, और दूसरा जो लैंड कंसोलिडेट की गई, चकबंदी सिस्टम आपने समझा होगा. चकबंदी का मतलब होता है ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट द फार्म साइज कुड बिकम वाइबल फॉर एग्रीकल्चर. तो इस दौरान लैंड रिफॉर्म में दूसरा बड़ा जो कानून था वो क्या लाया गया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ज़मीनों को इकट्ठा करना. इसमें एक किसान के पास जितनी ज़मीन होती थी उसको वैल्यू देकर उसके खेतों को एक जगह किया गया, सो दैट जो फॉर्म्स थे, जो खेत थे, उनका साइज बढ़े. इट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट बिकेम वेरी सक्सेसफुल, but the other two components of land reforms were much less successful.
though the laws were made to put up the upper limit of ceilings of how much agricultural land one person could own. तीसरी जो ज़रूरत थी सरकार की वो ये थी कि वो लैंड सीलिंग करेंगी, यानी एक नाम पर इससे ज़्यादा ज़मीन ना हो. बट जो लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे मैनेज्ड टू एवेड द लॉ. और उन्होंने क्या किया? Similarly, the tenants who worked on the someone else's land were given the greater legal security against the eviction. But this provision was rarely implemented. तो जिनके पास ज़मीनें थी उन्होंने क्या किया? ज़्यादा बहुत ज़मीनें थी, उन्होंने अपने घर में ज़्यादातर लोगों के नामों पे ज़मीनें कर दी. तो यहाँ पर गवर्नमेंट फेल कर गई. चौथा स्टेप जो सरकार ने उठाया था कि जो टेनेंट्स हैं, यानी जो दूसरों की ज़मीनों पे खेती करते हैं, उन्हीं को ज़मीन दे दी जाएगी. तो ये भी पूरा नहीं हो पाया. इट वॉज नॉट ईजी टू टर्न दीज वेल मीनिंग पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर into a genuine and effective action. This could happen only if the rural landlords poor were mobilized. यानी सरकार नीतियाँ बना रही थी लेकिन उनको लागू करना इतना आसान नहीं था. ये तभी पॉसिबल था कि अगर लैंडलेस पुअर्स जो हैं, जो गरीब हैं, वो क्या हो जाएं? सरकार के अगेंस्ट इकट्ठे हो जाएं. Therefore, many proposals for land reforms were either not translated into the law, or when laws were being made, they were not the good laws. यानी अगर या तो कानून बने ही नहीं, या अगर कानून बने भी तो वो कानून बहुत बढ़िया कानून नहीं थे. Dear students, a very important step was taken by the government at the name of Green Revolution. In the face of prevailing land crisis, the country was clearly vulnerable to external pressure and dependent on food aid. आप सबको पता है 62 में चाइना हैव अटैक्ड ऑन इंडिया और भारत के सामने एक फूड एड की समस्या आई, मेनली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. यानी भारत को, जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, उसको यूनाइटेड स्टेट्स से खाद्यान्न में मदद लेनी पड़ी. The United States in turn pushed India to change its economic policy. So the government adopted a new strategy for agriculture in order to ensure food sufficiency. Instead of earlier policy of giving more support to the areas and farmers that were lagging behind, now it was decided to put more resources into these areas which already had irrigation and those farmers who were already well off. यानी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया. गवर्नमेंट उन हिस्सों को जो कि ऑलरेडी गरीब हिस्से थे, पहले उन पे बहुत खर्चा कर रही थी, लेकिन अब पॉलिसी चेंज करके गवर्नमेंट ने उन हिस्सों पर खर्चा करना शुरू किया, खेती पर खर्चा किया जहाँ पर इरिगेशन यानी अच्छी उपजाऊ ज़मीनें थी और जहाँ पर सिंचाई के साधन थे. It was decided to put more resources into those areas which were already had irrigation and those farmers who were already well off. The argument was that those who were already had a capacity could help increase the production rapidly in a short term. और सरकार की जो ये इन सबको फैसिलिटी देने की वजह थी वो यही थी कि जो वेल ऑफ पीजेंट्स हैं उनको अगर सहायता की जाती है तो वो जल्दी आने वाले समय में ज़्यादा अन्न उपजा सकते हैं. एंड दस द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डेड वैरायटी सीड्स. गवर्नमेंट ने इन्हें क्या दिए? अच्छे उत्पादक बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर इरिगेशन एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस. सरकार ने बहुत कम कीमतों में इनको खेती के संसाधन, बीज, खाद, कीटनाशक सब उपलब्ध कराए. द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव ए गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस. दूसरा बड़ा स्टेप जो सरकार ने उठाया
इन किसानों को एक सही मूल्य देकर इनकी फसल खरीदने की निश्चितता सरकार ने दी। दिस वॉज द बिगनिंग विच वॉज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये सब सरकार ने एक पॉलिसी के तहत किया और उस पॉलिसी का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था यानी हरित क्रांति थी, इसके भी कुछ फ़ायदे हुए और कुछ नुकसान। द रिच पीजेंट्स एंड लार्ज लैंडलॉर्ड्स वर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द process. The Green Revolution delivered only a moderate agriculture growth, mainly in the rise of wheat production, and raised the availability of food in the country. तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक स्टेप जो फ़ायदा हुआ वो ये था कि इसने वीट प्रोडक्शन को बढ़ाया, गेहूं की खपत को बढ़ा दिया और पूरे कंट्री में फूड की अवेलेबिलिटी हो गई। बट it increased the polarization between the classes and the region. Some region like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh become agriculturally prosperous. लेकिन इससे भारत में का ध्रुवीकरण हो गया। कुछ हिस्से जो थे वो अमीर हिस्से बन गए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, while the other remain backward. Secondly, the Green Revolution had two other effects. One was that in many parts the stark contrast between the poor peasantry and landlord produced the condition favorable for unifying the people who were the poor people. यानी जो लेफ़्ट ओरिएंटेशन थी, लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने आपको राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट बताया था। लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो लेबर और पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने क्या करना शुरू किया, ये जो पुअर पीजेंट्स थे इनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। सेकेंडली, द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ वॉट कॉल्ड द मिडल पीजेंट सेक्शन। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से एक जो लाभ हुआ, दूसरा लाभ, एक मिडल पीजेंट सेक्शन उभरा, एक मध्यम वर्गीय किसानों का समूह उठ गया। दीज वर द फार्मर ऑफ मीडियम साइज होल्डिंग हु बेनिफिटेड फ्रॉम द चेंजेस एंड सून इमर्ज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये मध्यम दर्जे के जो किसान थे वो धीरे धीरे राजनीति में हावी हो गए। सो डियर स्टूडेंट, जो स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट थी, it became quite good after the green revolution और इसने भारत को जो है वो बहुत अच्छे से फ़ायदा दिया। It turned from 1960. You will see in chapter 5 how after Nehru's death the Congress system encountered difficulties. लेकिन कांग्रेस सिस्टम जो था वो नेहरू की डेथ के बाद टूट गया। इंदिरा गांधी इमर्ज एज अ पॉपुलर लीडर। शी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग इकोनॉमी। द पीरियड फ्रॉम 67 onwards witnessed many new restrictions in the private industry. 14 private banks were nationalized. The government announced the policy of pro-poors. These changes were accompanied by the ideological tilt towards the socialist policies. तो ये सब जो है ये हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। So this is all of chapter 3. It has been completed. I'm hoping that all of you must be doing your assignments. Please continue doing it. Otherwise, it is going to be difficult for you to understand and to learn the whole syllabus. Thank you very much.